السلام علیکم دوستو، اس انڈین لڑکی نے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا۔ اس لڑکی سے ایک رپورٹر نے کچھ سوال پوچھے اسلام کے بارے میں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو کیا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا اسی بارے میں جواب بھی ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کتنے 5 بھی اٹھنا ہوتا ہے؟ جی نماز پڑھنی ہوتی ہے، سب کو ضروری ہوتا ہے نماز پڑھنا؟ جی سر، ہاں؟ جی پکا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، ہاں؟ یہ پلر ہے اسلام کا، ہاں۔ مان لو کوئی نہیں پڑھا تو وہ غلط ہے، سوتا رہ گیا ٹھنڈی میں تو وہ بھی غلط ہے۔ تم ٹھنڈی میں بھی اٹھ جاتی ہو؟ اٹھتے ہیں، ہاں۔ اٹھنا چاہیے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، میں نے سنا ہے، تو 5 وقت پڑھتی ہو تم؟ جی سر۔ ہاں، سب پڑھ لیتے ہیں؟ دھارمک بچے ہیں۔ میرے تو ایک دو دوست ہیں نالائق، وہ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو مطلب اچھا، یہ تو اپنی اپنی آستھا کا وشے ہے نا، ان کو ماننا ہے، آپ کا کیسے مان رہے ہو۔ کیا کیا اسلام کے پلر ہوتے ہیں؟ شہادہ، فیتھ، چیریٹی، نماز، حج، اور ایک اور ہے روزہ، فاسٹ۔ شہادہ کیا ہوتا ہے؟ فیتھ، یقین، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہے، اس پہ توکل کرنا چاہیے کہ جو تم اس سے مانگ رہے ہو وہ دے گا، اس پر پورا بلیو کرنا چاہیے۔ چیریٹی دینی چاہیے، اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، پور لوگ کی ہیلپ کرنی چاہیے، فاسٹ کرنے چاہیے، 30 ڈیز کے ہوتے ہیں رمضان، نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت کی ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور حج کرنا چاہیے، حج بھی کرنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مہیلا بھی جاتی ہیں حج کرنے؟ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رک کے نماز پڑھو دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو، سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے، لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے۔ جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں، اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس۔ سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھے گا نہیں۔ یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ۔ تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس۔ صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنسائٹس، ایتھموئڈل سائنسائٹس، اسپینوئڈل سائنسائٹس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکائٹس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے۔ عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ، صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے۔ 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے
हवा का, वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं। डायफ्राम ढका देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया, जिसको एसोफेजियल हर्निया है। हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं। जो मसल्स आपके हैं, थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है, और ये मसल्स के लिए अच्छे हैं, आपके घुटने के लिए अच्छा है, और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ अगर मेडिकल बेनिफिट बयान करूं सलाह के बारे में तो इंशाअल्लाह घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं। उर्दू में क्योंकि मुझे महारत नहीं है, अंग्रेजी में अगर मैं सलाह के बेनिफिट का जिक्र करने लगूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में कि जब आपको कुछ तकलीफ है, सफरिंग है, बीमारी है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी, आप नहीं कह सकते मैं बीमार हूं तो नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में, एक शख्स जिसको हेमोरॉइड होता है, पाइल्स होता है, वो आता अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साइड पर लेट के पढ़ो। अल्लाह फिर से पैगाम दोहराते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 में कि आप अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ वो है, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है, और वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आपसे सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो मोमिन है जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। जो लोग नमाज नहीं कायम करते और ज़कात नहीं देते वो आपके दोस्तों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब
जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में। सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे वो है सलाह के बारे में। अल्लाह के फरमाते हैं सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146 अल्लाह के फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। सही बात। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है एक सही हदीस में सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661। अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह। इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इंसान सलाह नहीं कायम करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर जैसा है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुदस्सिर में सूरा नंबर 74 आयत नंबर 41 से 43 में कि जो गुनहगार दोजख में डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दोजख में हैं, तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 40 में, ए मेरे रब मुझे सलाह कायम करने वाला बना और मेरे बच्चों को भी सलाह कायम करने वाला बना। कुरान मजीद में दुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों के नाज़ाब बिन्नार। ए रब हमें अच्छे चीज दे, हमें कामयाबी दे इस दुनिया में और आखिरत में, और हमें दोजख की आग से बचा। तकरीर खत्म करने के पहले और कुरान की आयत तिलावत करने के पहले मैं फिर से एक शायरी कहूं। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरी दीन की सरफराजी। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन फिर भी इस आयत के मुकाबले में शायरी फीकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 और 163 में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो कि मेरी सलाह, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उनमें से हूं जो सबसे पहले अल्लाह को सिजदा करता हूं और कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर था डॉक्टर जाकिर नायक का। जिस तरह उसने नमाज के बारे में बहुत से फ़ायदे भी बताए और नमाज के बारे में बहुत से कहानियाँ और कुछ वाक़े भी बताए। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। वालिदैन भी ये बात अक्सर कहते हैं और डॉक्टर जाकिर नायक ने भी ये बात कही कि हमारे और काफिर के दरमियान एक चीज़ का फ़र्क है, वो है नमाज। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ये जिस तरह भी हो आपको अदा करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि आप सफ़र पर हो, घोड़े पर सवार हो या गाड़ी में हो, आप नमाज पढ़े, उसी गाड़ी में पढ़े। आपके पीछे दुश्मन हो और वो आपको मारना चाहते हो, आप उससे भाग रहे हो और या कोई गाड़ी में हो या किसी चीज़ में हो, फिर भी आप नमाज पढ़ें। नमाज हर मुसलमान पर हर सूरत पर फ़र्ज़ है। बहुत ही खूबसूरत से बातें थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।